करेंगे अब श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। सबसे पहले शिवरात्रि का शुभकामनाएं। थैंक यू। बेसिकली डेफिनेटली आज विमेंस का डे है, विमेंस डे है, उसका भी हार्टी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। We are now on the election mode, I think. Congress party within last 2-3 weeks we are going on an aggressive path on election campaign. On one side, our leader Rahul Gandhi ji is doing Bharat Jodo Nyay Yatra. That yatra now reached Gujarat after covering so many states. It started from Manipur, now ending on Mumbai. On March 17th, there will be a Mammoth rally in Mumbai, 17th evening. The yatra will be culminated on March 17th. We invited all the India Party leaders to attend that Bombay rally. Our Congress President himself is writing a letter and sending an invitation to all of the India Party leaders. During this yatra, you are all aware of that. We are announcing lot many guarantees and promises to the people of the country. Basically, we announced Kisan Nyay, passing a law granting legal status to MSP in Parliament. This is the biggest demand from the farmer side. Congress party is committed to fulfill this promise when India is coming back into power. Then, Hissadari Nyaya, a socio-economic caste census to give more meaningful foundation to social empowerment and economic justice in the ownership of the nation's wealth and participation in the government. Yesterday, we announced the UN Nyaya, one of the biggest guarantee and promises relating to the youth of this country. The youth of this country are totally demoralized. The way in which unemployment is peaking in this country. To address that concern, we are very much committed. Congress party is very much committed. India coalition is committed. Through Bharti Bharosa, the Congress guarantee that it will create 30 lakhs job in central government, according to the published job calendar, which we have done in Karnataka. You know that our Telangana experience. Within these 3 months, we have given 35,000 youths job. Can you imagine that? You can verify. Therefore, whenever we are promising, we are fulfilling that. In Karnataka also done, Telangana also done. Now we are promising that 30 lakhs job will be created in the central government when we come into the power. Pehli Naukri Paki, Congress guarantee a new right to apprenticeship act, just like Manrega, just like right to information, just like right to food, the right to apprenticeship act is going to be implemented. A private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get a 1 lakh per year. That is 8,500 per month. The Congress guarantee is to new laws to ensure the highest standard of integrity and fairness in the conduct of public examination. Now you can see that every word leaking the examination is the biggest problem in this country. Our youngsters are lost their trust in these examinations now. We need to rebuild that trust. The Congress party is giving a new guarantees
to ensure the highest standards of integrity and fairness for conducting the examination to prevent the paper leak. Then Congress guarantees to bring legislation to ensure better working conditions and social security for lakhs and lakhs of youth who seek employment every year in the gig economy. The Congress will create rupees 5,000 crore corpus with allotment spread across all districts of the country for a period of 5 years. Youth below age of 40 years can avail startup funding of their business enterprises in any sector. Though this guarantee is going to be to the field. Just now we have reviewed with the General Secretaries in charges and PCC President of this country to have a verification about our war room status, our booth level agent status and our booth level work status. Therefore, we will spread this guarantees among the people through this BLAs all over the country. Now I am coming to the next item. Yesterday Congress Election Committee had met, you know that. Now Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there. Former CWC member Tamaruddin Sahu is there. That I will leave it out. In this list, out of 39, "15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60. 61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jankir Champa SC, Dr. Shivkumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhupesh Baghel. Chhattisgarh, Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh, Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh, Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamaradwaj Sahu. Karnataka, Bijapur SC, SR Algor. Karnataka Haveri, Anand Swami Gaddevara Math. Anand Swami Gaddevara Math. Karnataka Tumkur, SP Muddana Megowda. Karnataka Mandya, Venkat Ramegowda, Star Chandru. Karnataka Bangalore Rural, DK Suresh. Shimoga, Srimati Geeta Shivraj Kumar. Hassan, Shreyas Patel. Then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unitan.
കണ്ണൂർ കെ സുധാകരൻ, വടകര ഷാഫി പറമ്പിൽ, വയനാട് ഫോമർ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോഴിക്കോട് ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ, പാലക്കാട് ശ്രീ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ, ആലത്തൂർ മിസ് രമ്യ ഹരിദാസ്, തൃശൂർ കെ മുരളീധരൻ, ചാലക്കുടി बिन्नी बहनान। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ दुर्ग से राजेंद्र साहू जुड़ रहे हैं जो कि प्रत्याशी बनाए हैं कांग्रेस ने। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू सर। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, क्या कहेंगे सर आप? बहुत खुशी की बात है एक आम कार्यकर्ता को जो इस लोकसभा के प्रत्याशी समझा और बनाया, इसके लिए पार्टी को के सभी वरिष्ठ जनों को, खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय चरण दास महंत जी को और माननीय दीपक बैठ जी को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि ये सदरे से कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता को जो इस लायक समझा और प्रत्याशी बनाया लोकसभा का। एक छोटे से कार्यकर्ता के सामने एक बड़ा सा प्रत्याशी है, उनके खिलाफ विजय बघेल आपके सामने खड़े हैं, सब बहुत बड़ी चुनौती। देखो कार्यकर्ता मजबूत है सब कांग्रेस के और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे, सामने प्रत्याशी कोई नहीं। जी किन मुद्दों के साथ मैदान में जा रहे हैं सर? मोदी की गारंटी थी एक तरफ बीजेपी की, आपकी क्या गारंटियां हैं? हमारी गारंटी तो बहुत सारी है। किसानों को एमएसपी देंगे, एमएसपी की गारंटी रहेगी। महिलाओं को 6,000 रुपया महीना देना है, माननीय राहुल जी ने कहा है। और सरकार बनते ही लगभग 30 लाख रोजगार के पद भरे जाएंगे और साथ ही साथ बेरोजगारी दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा, महंगाई पे काबू पाने का पूरा प्रयास रहेगा और देश में जो बढ़ती हुई अराजकता है उसको वापस से फिर से प्रेम और मोहब्बत से चलाने का काम हमारी सरकार करेगी। जी राजेंद्र जी, पिछली बार प्रतिमा चंद्राकर थे आपकी जगह पर, हालांकि वो हार गई थी। अब आपका नाम है राजेंद्र साहू, आपका नाम है यहाँ पर, आप मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है कि सब कुछ सामान्य, कोई गुटबाजी तो नहीं होगी? यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब मिलकर लड़ेंगे और आम कार्यकर्ताओं की मांग पर ही राजेंद्र साहू को, एक आम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल ये भी, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, 11 में से कितनी सीट कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद, क्या दावा करेंगे? 11 में से बहुत सी अधिकांश सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हर मामले में विफल रही है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की है, उसमें भी विफल रही, महंगाई दूर नहीं कर पाए, किसानों को उसके फसल का सही मूल्य नहीं दे पाए। जी मैं नंबरिंग आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि 11 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। आप नंबरिंग बता दीजिए, कितने आप दावा कर रहे हैं? 5, 6, 10 की 10, 11 की 11, क्या? नहीं, हम 7 से अधिक सीट जीतेंगे। जी जी जी। तो सर मैदान में कब से उतरने वाले हैं? हम लोग की तैयारी तो पहले से चल रही है। जी चल रही है, पहले से तैयारी चल रही है। राजेंद्र जी, आ चुकी वुमेन्स डे भी है, महिला दिवस भी है, तो महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, महिलाओं के बीच में पहुंचेंगे और लगता है कि महिलाओं का साथ पूरा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को आपको? जी महिलाओं का साथ इसलिए मिलेगा क्योंकि ये हर बार झूठे वादे किए हैं। महंगाई दूर करने की बात की है, नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबसे अधिक अगर किसी के ऊपर भार हुआ है तो महिलाओं के ऊपर। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की है। छत्तीसगढ़ में आज दिनांक तक किसी को 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिला।
18 लाख मकान देने की बात हुई थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अभी तक एक भी व्यक्ति को मकान नहीं दिया गया है। इससे सबसे ज्यादा नाराज महिलाएं हैं। जी ठीक है राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आगामी जो चुनौती है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप विजयी हो ऐसी हमारी कामना भी है, और जीतोड़ मेहनत करें। आप जनता के बीच में जरूर पहुंचे, और देखने वाली बात होगी कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आम आदमी कांग्रेस पार्टी अब जा रही है मैदान में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अभिलाष जी, बीजेपी ने पूरी 11 के 11 नाम उतार दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अभी 6 ही उम्मीदवार उतारे हैं, 6 ही प्रत्याशी केवल। बिल्कुल, देखिए ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाले दूसरों के लिए इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि न्यूज 24 ने आज से 10 दिन पहले इन्हीं नामों का ऐलान जो है वो चलाया था कि ये संभावित उम्मीदवार हैं। तो खास बात यह कि आज औपचारिक सूची आने से करीब आधा घंटा 40 मिनट पहले हमने पूरी की पूरी सूची जो थी वो अपने दर्शकों को दिखा दी थी। न्यूज 24 एकमात्र ऐसा चैनल था जिसके पास ये सूची करीब 40 मिनट पहले से थी, और हमने पूरी ये खबरें दिखाई थी कि इस सीट से इन लोगों को टिकट दिया गया है। आपको याद होगा संभव कि न्यूज 24 लगातार ये बात उठा रहा था अपने डिबेट में और उसमें कि क्या बीजेपी की राह पर चलकर कांग्रेस अपने दिग्गजों को टिकट देगी, और भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाए जाने की संभावना की बात कही जा रही थी क्योंकि इससे मनोवैज्ञानिक बढ़त सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को मिलती है जब उनको लगता है कि उनका एक ऐसा चेहरा जो इतने दिनों तक मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहा था वो लोकसभा में भी चुनाव लड़ेगा, तो माहौल बनाने का जो काम था वो करना था। ताम्रध्वज साहू को जिस जगह से उतारा गया है, आप समझते हैं कि वहां साहू वोट बैंक बहुत ज्यादा है और उसके लिए वो एक बेस्ट कैंडिडेट उस सीट पर माने जा रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विकास उपाध्याय को रायपुर से टिकट दिया गया है। यंग लीडर हैं, हार गए हैं जरूर, लेकिन विकास उपाध्याय की अपनी जीवटता, अपनी कर्मठता रही है, और लंबा टाइम जब चूंकि 15 साल में रमन सरकार में जब रायपुर में कोई भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होता था, कोई दिक्कत होती थी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस चीज को आपने देखा होगा कि वो सबसे आगे खड़े होते थे और उस जंग को वो लड़ते रहते थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कैंडिडेट सिलेक्शन जो वो काफी अच्छा माना जा रहा है। और जी यहाँ पर इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प अभिलाष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अभिलाष जी? वहां पर है जी अभिलाष जी, अगर हम इस 6 नामों को देखें, गौर करें, तो इसमें देखते हैं कि एक ही नाम है जो रिपीट है, वो नाम है ज्योत्सना महंत। क्योंकि कोरबा से ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की थी। केवल एक ही नाम, बाकी तो नए चेहरे। नहीं, ये मजबूरी भी हो जाता है संभव बताना, इसलिए भी मजबूरी हो जाता है क्योंकि अगर नए चेहरे जाएंगे तो पहले जो इनके पास सांसद थे वहां पर फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी बढ़ता है। जो अभिलाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, वहां पर माफ कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जो 6 नाम सामने आए हैं, कैसे विश्लेषण करेंगे आप 6 नामों का? अनुभव और जो युवा उनका बहुत अच्छा सामंजस्य दिखाई दे रहा है। जितने बड़े चेहरे हैं सबको लोकसभा चुनाव में लगाया जा रहा है। हम सबसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनको राजनांदगांव में लगाया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उनको महासमुंद से लगाया जा रहा है। ज्योत्सना महंत जो इसकी सांसद है और नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है, उनको जो है कोरबा से रिपीट किया जा रहा है। उनके राजेंद्र साहू उनकी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी नजदीक पाए जाते हैं और पूर्व लोकसभा से यहाँ पर उनकी जो विजय बघेल जिसको भाजपा ने माना है, उनके मुकाबले साहू मतदाता ज्यादा है। तो इस फैक्टर को देखते हुए वहां मेरा राजेंद्र साहू को उतारा गया है और रायपुर लोकसभा में महोदय दिवाली के खिलाफ विकास उपाध्याय को चुनाव में उतारा गया है। विकास जो है युवा दे रहे हैं और उन्होंने लगातार संघर्ष करके सरकार के खिलाफ लगातार। ठीक है, कुछ तकनीकी खामियां हो रही। मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि अच्छे से आवाज भी नहीं आ पा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, एक बार फिर से लौटेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को ये पूरी जानकारी दे दें, जो दुर्ग है, दुर्ग में कहां मुकाबला है, क्या मुकाबला है? विजय बघेल बीजेपी प्रत्याशी हैं, राजेंद्र साहू कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। कोरबा की अगर हम बात करें तो कोरबा में यहां पर नया चेहरा सरोज पांडे को दिया, जो कि राज्यसभा सांसद थी। अब सरोज पांडे को बीजेपी ने मैदान में उतारा है कोरबा से, और इसी के साथ ज्योत्सना महंत को रिपीट किया है कांग्रेस पार्टी ने कोरबा से। इसी के साथ अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर से विकास उपाध्याय को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने।
यूथ हैं और अच्छा प्रभाव माना जाता है क्षेत्र में विकास उपाध्याय का, और पार्टी में भी काफी तवज्जो मानी जाती है विकास उपाध्याय की। और रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, यानी कि रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्याय की जंग देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल, जो कि ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल वो ऐसे चेहरे जो कि कभी चुनाव नहीं हारे, अब उनके सामने है विकास उपाध्याय। एक बार फिर से हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल संभव जी, आवाज आ रही है आपकी। मनोज जी, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम समीकरण फिट बैठाने की कोशिश की है, आपकी आवाज आ रही है। फिर समीकरण फिट बैठाने की कोशिश की। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे अभिलाष जी से, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ये नजर आता है कि बीजेपी की राह पर चलती नजर आई है कांग्रेस पार्टी। देखिए, बीजेपी की राह पर इस लिहाज से चलती हुई नजर आ रही है कि ठीक है, अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं और उसके पहले ही सूची आ जाना ये बड़ी बात है। नहीं तो हमेशा कांग्रेस में ये ट्रेंड रहा है कि वहां पर इतने सारे डिस्प्यूट होते हैं कि वो प्रत्याशी घोषित करते करते काफी लेट कर देते हैं। अपन ने विधानसभा चुनाव में भी देखा था। तो केवल इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये जी जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जहां पर भाजपा ने अधिकांश जगहों पर जो है नए चेहरे उतारे हैं, वहीं पर कांग्रेस ने अपने दिग्गज जो राज्य के दिग्गज नेता हैं उनको ही जो है मैदान में उतारा है, और ये सोचकर उतारा है कि जो दूसरे लोग हैं वो कहीं इस वक्त जो पूरा देश में एक राममय वातावरण चल रहा है, और जिस तरह से राज्य में भी अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई थी और भाजपा ने 54 सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बनाई थी, तो यहाँ पर परिस्थितियां जो है कांग्रेस के खिलाफ है। इसको देखते हुए सभी प्रमुख जो चेहरे हैं उनको यहाँ पर उतारा गया है, जिससे पूरी ताकत से जो है भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा जा सके। तो इसी लिहाज से जो 6 आज जो उम्मीदवार घोषित किया है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में, उनमें से 5 वरिष्ठ नाम जो है वो सामने है, और केवल एक नया चेहरा जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है वो राजेंद्र साहू को वहां पर उतारा गया है। बाकी जितने चेहरे हैं सब नामी चेहरे हैं। पिछली सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री रहे लोगों को उतारा गया है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उतारा गया है, पूर्व नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया को उतारा गया है, सांसद ज्योत्सना महंत को रिपीट किया गया है। तो इस तरह से जो है दिग्गज जो चेहरे थे उनको जो है मैदान में लाया गया। हालांकि इनमें से कुछ चेहरे जो है वो चुनाव हारे हुए हैं, जैसे ताम्रध्वज साहू चुनाव हार चुके। जी मनोज जी, राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूपेश बघेल को उतारा, इससे पहले भोलाराम साहू जो कि चुनाव हार गए थे, कांग्रेस ने इन्हें मैदान में उतारा था। क्या वजह है, मुख्य वजह क्या लगती है? मजबूत कैंडिडेट यही वजह मानी जाए या कुछ और समीकरण बैठाने की कोशिश की है पार्टी ने? हाँ, देखिए, एक मजबूत चेहरा कांग्रेस में इस वक्त जो सबसे मजबूत चेहरे हैं वो भूपेश बघेल ही हैं, चूंकि 5 साल में जो है उनका चेहरा न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान बनी है। भूपेश बघेल के जो विकास मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी, तो निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरे जो है वो भूपेश बघेल माने जाते हैं। तो यही वजह है कि राजनांदगांव में बजाय किसी विधायक को उतारने के एक बड़े चेहरे, तो पूर्व मुख्यमंत्री इनसे बड़ा चेहरा प्रदेश में कोई नहीं है। और जिस तरह से भाजपा लगातार ये बात कह रही है और जो लगातार ये टारगेट कर रही है कि 11 में से 11 सीट जो है वो हम जीत कर लाएंगे, तो इस तरह से एक रणनीति के तहत भाजपा की घेराबंदी करने के लिए जितने बड़े चेहरे हैं उन सबको चुनाव में झोंकने की रणनीति इस पहली सूची से नजर आ रही है। ठीक है मनोज जी, हम बारी बारी से हर सीट पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले राजधानी रायपुर की, जहां पर वो प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल, जो कि ये मैंने पढ़ा, ये सुना कि जो ब्रजमोहन अग्रवाल कोई चुनाव नहीं हारे, कभी नहीं हारे, उनके सामने विकास उपाध्याय। क्या लगता है कि यूथ का फायदा मिलेगा विकास उपाध्याय को, या फिर यहां पर थोड़ा मजबूत कैंडिडेट नहीं है विकास उपाध्याय ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने रायपुर में?
देखिए, बृजमोहन अग्रवाल बेहद कद्दावर माने जाते हैं और चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कभी भी वो चुनाव नहीं हारे, जैसा कि आपने स्वयं बताया। और ये माना जाता रहा है कि न सिर्फ वो खुद चुनाव जीतते हैं, बल्कि जहां जहां पर भी उनको चुनाव संचालक बनाया जाता है, बहुत सारे टफेस्ट सीटों को उन्होंने जहां जहां पे उन्होंने चुनाव संचालन किया, उसमें उन्होंने जीत दिलाई भाजपा प्रत्याशियों को। तो वो बहुत ही कुशल प्रबंधक और आक्रामक प्रचारक माने जाते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है, जिस तरह से रायपुर में पिछले 3 दशक से जो है भाजपा का कब्जा रहा है यहाँ पे रायपुर लोकसभा सीट में, और कांग्रेस कहीं आसपास भी नहीं दिखाई देती। अब तक सबसे करीबी हार जो रायपुर लोकसभा में वो भूपेश बघेल की ही हुई थी, जब शायद 40-45 हजार कुछ वोटों से वो चुनाव हारे थे। लेकिन उसके अलावा जो है रायपुर सीट भाजपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। उस पर बृजमोहन अग्रवाल जैसे चेहरे को मैदान में उतारने से ये सीट अब और मजबूत दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस के पास एक बेहतर विकल्प, सबसे बेहतर यही हो सकता था, क्योंकि विकास उपाध्याय एक युवा चेहरे हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, संसदीय सचिव रह चुके हैं, AICC के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो कद जो है उस तरह से ठीक ठाक कद है विकास उपाध्याय का। इसलिए जितने संभावित उम्मीदवार जो बृजमोहन अग्रवाल को फाइट दे सकते थे, उनमें विकास उपाध्याय का नाम मुझे लगता है कि ठीक ठाक नाम है, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा, एक तो कोई बृजमोहन के सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ये कांग्रेस के अंदर भी लोग बातें करते थे कि बृजमोहन के सामने कौन लड़ेगा, तो इस तरह की बातें थी। इसलिए विकास उपाध्याय ही, जितने संभावित चेहरे हैं उनमें सबसे मजबूत चेहरे विकास उपाध्याय ही दिखाई देते हैं। जी, कोरबा सरोज पांडे बीजेपी जो कि राज्यसभा सांसद रही, और कांग्रेस ने एक बार फिर से रिपीट किया है ज्योत्सना महंत को, यानी कि यहां पर कोरबा में महिला वर्सेस महिला मैदान में। मनोज जी। बिल्कुल, ये बहुत रोचक मुकाबला यहाँ पर होने जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योत्सना महंत जो कि स्थानीय हैं, प्लस वो वहाँ की सांसद रही हैं पिछले 5 सालों में, और उनके पति जो है वो पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष रहे, अभी चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ में। तो एक बड़ा नाम है ज्योत्सना महंत, और सरोज पांडे भी कद्दावर नेत्री हैं, लेकिन अभी तक उनकी राजनीति का केंद्र दुर्ग और रायपुर के आसपास था। अब वो काफी दूर जाकर कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि भाजपा की केंद्रीय टीम में रही हैं और राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी पहचान है, राज्यसभा सांसद भी रही हैं। लेकिन एक बात ये समीक्षक जो है वो ये मानते हैं कि कोरबा जो है उनके लिए एकदम नई जगह होगी, और वहां पर जो है जाकर चुनाव लड़ना, हालांकि पहले से काफी अभी समय है, चुनाव घोषित नहीं हुए हैं और वहां पर जाकर उनको लड़ना है। लेकिन जिस तरह से कोरबा के आसपास के क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है, उसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर सरोज पांडे को एज है। लेकिन यदि ये मुद्दा बनता है, स्थानीय वर्सेस बाहरी का यदि मुद्दा बनता है, तो निश्चित तौर पर ज्योत्सना महंत की स्थिति कुछ मजबूत मानी जाएगी। अब देखना है कि कैंपेनिंग जब होगी, इलेक्शन कैंपेनिंग होगी, क्या क्या मुद्दे वहां पर हावी होते हैं, और जो है किस बात के आधार पर किस चेहरे को जनता पसंद करती है। ठीक है मनोज जी, माफ कीजिएगा, मैं अब आपको यहाँ पर रोकूंगा। हमारे साथ वैभव भी जुड़ रहे हैं। वैभव, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस में क्या हलचल है, क्योंकि 11 में से अभी 6 नाम फाइनल कर दिए गए, कुछ सीट अभी होल्ड की गई हैं। वैभव, देखिए, मैं अभी इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले में हूँ। कुछ देर में दीपक बैज हमारे साथ भी जुड़ेंगे। जो लिस्ट अभी जारी हुई है उसमें 5 जो सीटें हैं वो शेष है। एक तो बस्तर है, कांकेर है, बिलासपुर है, रायगढ़ और सरगुजा है। तो इन सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है, और बस्तर से दीपक बैज की अपनी मजबूत दावेदारी है, और इस वजह से अभी उस सीट पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन बाकी सीटों पर जो नाम सामने आए हैं वो ज़्यादातर जो है एक तरीके से पहले से ही
ये तय था कि इन जगहों से इन्हें चुनाव लड़ाया जाना है, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई मजबूत चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। एक जरूर थोड़ा सा चौंकाया है कांग्रेस ने कि ताम्रध्वज साहू, जो कि दुर्ग से सांसद पहले रह चुके हैं 2014 से 19 के बीच में, उन्हें महासमुंद भेजा गया है, जबकि महासमुंद से पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू का नाम बहुत चर्चा में था, लेकिन ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से सीधे महासमुंद भेजा गया है। ये थोड़ा सा एक अलग समीकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से नज़र आ रहा है। और दुर्ग से राजेंद्र साहू, जो कि नए चेहरे हैं, वो पूर्व में दुर्ग शहर से जो है काफ़ी मजबूती से दावेदारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दी थी। अब लोकसभा का टिकट उन्हें दिया गया है। तो एक शायद अलग समीकरण बैठाने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, और ये समीकरण कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगी ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी चेहरे सामने आए, शायद इनसे बढ़िया चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा के लिहाज से दिख भी नहीं रहा था। ठीक है मनोज जी, हम बात कर रहे हैं बस्तर की भी, तो हालांकि बस्तर से अभी अनाउंस नहीं हुआ, नाम चल रहा है दीपक बैज का। क्या आपको क्या लगता है दीपक बैज टिके रहेंगे, अपने इस जो प्रत्याशी की जो चीज है वो अपना बचा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है कवासी लखमा ने अपने बेटे के लिए, क्योंकि अपने बेटे और समर्थकों के साथ दिल्ली भी पहुंच गए थे वो। और देखिए, बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो सबसे अच्छी जीत जो कांग्रेस को मिली थी वो बस्तर लोकसभा क्षेत्र में ही मिली थी। बाकी कोरबा में बहुत क्लोज फाइट हुआ था और बहुत कम अंतरों से ज्योत्सना महंत जीती थी। तो इस तरह से कंफर्टेबल विन जो है वो पहले चित्रकूट से विधायक चुने गए थे दीपक बैज, फिर बस्तर लोकसभा चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया, तो वहाँ से भी उन्होंने अच्छी जीत अर्जित की थी। और हालांकि अभी जो पिछले चुनाव हुए उसमें वो अपने गृह विधानसभा जो चित्रकूट विधानसभा है वहाँ से चुनाव हार गए थे। तो एक निगेटिव पॉइंट उनके साथ ये है। और दूसरी तरफ कवासी लखमा जो है वो अपने इलाके से जीते थे। इस आधार पर, और दोनों का कद जो है करीब करीब एक समान है, लगातार कवासी लखमा 5 बार से वहाँ पे विधायक रहे हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी थे, तो एक बड़ा नाम कवासी लखमा का है। इसलिए निश्चित तौर पर इन दोनों नामों को कंसीडरेशन में जब रखेगी पार्टी, तो ये विचार करेगी कि इन दोनों में कौन ज़्यादा, किसके फेवर में ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं और कौन जो है विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है वैभव, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ जैसे कि हम बात कर रहे हैं कांकेर, बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर, सरगुजा, ये तमाम चीज़ें हैं। और चौंकाने वाली अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूपेश बघेल का नाम चौंकाने वाला है। जैसे कि हमारे से बात हो रही थी मनोज जी से भी, उन्होंने भी बताया कि मजबूत कैंडिडेट लगता नहीं है कि राजनांदगांव में और कांग्रेस को इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट मिल पाता। तो यही वजह रही भूपेश बघेल को मैदान में उतारना। बिल्कुल, और इसके पीछे विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो 8 सीटें हैं राजनांदगांव लोकसभा में, उनमें से 5 सीटें कांग्रेस के पास है, 3 सीटें बीजेपी के पास है। और वो राजनांदगांव का जो इलाका है वो किसानों का जो है प्रभावशील इलाका है, और किसानों के बीच भूपेश बघेल एक मजबूत नाम भी है, ठीक है वैभव, माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। एंगल को भी ध्यान में रखा गया है, और वहां से किसी की और मजबूत दावेदारी थी नहीं। दलेश्वर साहू, जिनको 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था, वो भी वहां पे कामयाब नहीं हुए थे। तो साहू समीकरण को भी पहले कांग्रेस ने साथ के देख चुकी है। छन्नी साहू महिला होने के नाते उनकी दावेदारी मजबूत थी, लेकिन जब भूपेश बघेल का नाम आया तो फिर बाकी दावेदार वैसे ही पीछे रह जाते। और भूपेश बघेल से कोई बढ़िया चेहरा, जैसा मनोज सर भी बता रहे हैं, और बाकी समीकरणों को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पास भूपेश बघेल से बड़ा चेहरा कोई राजनांदगांव के भीतर में तो नहीं था। ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।